Good morning, students. Let's continue our same topic that we discontinued in the previous video. Okay, so we have talked about the multiple cropping. So multiple cropping is a way in which farmer can take farmer can take more crops from same piece of land. Okay, so other way is used. Other way. Other way is to use modern farming method. Okay, other way is higher yield. अगला जो वे है, जो तरीका है, वो कौन सा हो जाएगा? हायर yield. Okay, so before green revolution, okay, sorry, in the green revolution, the late 1960 green revolution in 1960, okay, introduced HYV seeds for wheat and rice. ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुई थी 1960 में, तो उसने HYV सीड्स जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे. ठीक है, किसके? वीट और राइस के. ओके, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स. ओके, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स गेव लेस अमाउंट ऑफ grains from one plant. Okay, and by using HYV seeds produce more amount of grains from वन प्लांट. देख, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि HYV सीड्स जो है प्रोड्यूस की गई थी. ठीक है, लैब में. सो HYV सीड्स इज प्रोड्यूस इन द लैब में प्रोड्यूस हुई. एंड these seeds have the tendency to produce more amount of grains from one plant. Okay, as compared to the traditional seeds. जो ट्रेडिशनल सीड्स है, ट्रेडिशनल सीड्स जो हैं उनके कंपेयर में HYV सीड्स जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रेन जो है एक ही प्लांट से पैदा कर लेते हैं. ठीक है, ओके. ओके, सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस far larger quantities of food grains. Okay, it means production of wheat and rice now increased. Okay, now increased in larger quantities as compared to earlier time. Okay, so HYV seeds, but main drawbacks of HYV seeds, major drawbacks of HYV seeds are they need more water. I mean plenty of water, and also need chemical fertilizer. Okay, also need chemical fertilizer. Okay, so they need more water and chemical fertilizers and pesticides. Okay, pesticides. Okay, to produce best result.
यानी कि जो जो मेन इसके जो ड्रॉबैक्स जो रहते हैं इसके, जो मेन जो इसकी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सीड्स हैं उन्हें एक तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए, साथ साथ में पेस्टिसाइड भी चाहिए कीड़े मारने के लिए, ठीक है ना, बेटर रिजल्ट के लिए. So higher yields were possible only from a combination of HPV seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides. It means for higher yield, HYV seeds plus irrigation. It means we need a combination of HPV seeds plus irrigation plus chemical fertilizer. Okay, chemical fertilizers and pesticides. यानी कि अगर हाइयर यील्ड आपको चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, यानी कि अगर आपको हाइयर यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो उसके लिए HPV सीड्स यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, HPV सीड्स यूज़ करनी पड़ेगी, इरिगेशन ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा आपको यूज़ करने पड़ेंगे और आपको पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है ना. यानी अगर हम ये करेंगे तब जाके हमको क्या मिलने वाला है, हाइयर यील्ड मिलेगी, यानी ज़्यादा उत्पादन हमें इसका मिलेगा, ठीक है ना. और ज़्यादा उत्पादन भी कब मिलेगा, जब हम क्या यूज़ करेंगे, HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तब, ठीक है. अब देखिए, फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दे वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. इट मीन्स farmers of who tried this method, farmers of Punjab, Haryana and Western UP, it means Western Uttar Pradesh. Okay, they were the first who try this method, of modern farming. यानी मॉडर्न फार्मिंग का जो मेथड है, जो ये जो तरीका है, इसको पहले एडोप्ट करने वाले कौन थे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान थे, ठीक है ना. इन किसानों ने सबसे पहले इस मेथड को क्या किया था, यूज किया था, ठीक है. Okay, did you understand something? Okay, if you not understand anything, if you don't understand anything or something, you can write me in the comment box. Okay, now, so and as I told you earlier that the HPV seeds you needs irrigation. It means lots of water used in this method. So farmers of the Punjab, Haryana and Western UP, they dig out tube wells. Okay, they set up their own ट्यूब वेल्स. यानी सब लोगों ने क्या किया कि अपने अपने ट्यूबवेल जो है सेटअप करना शुरू कर दिए, ठीक है ना. एंड मेड यूज HPV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन द फार्मिंग. और ट्यूबवेल के साथ साथ में यूज़ करना शुरू कर दिया एंड यूजेस HYV सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ओके, ये सब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना कर दिया. And some of they also buy tractors. They also buy tractors and threshers, which made plugging and harvesting faster. है ना. These are the fixed capital. Okay, and they makes plugging and harvesting
हार्वेस्टिंग फास्टर, यानी कि जो ट्रैक्टर से थ्रेशर से ये क्या करते हैं, प्लगिंग को, ठीक है ना, प्लगिंग यानी हल जो चलाया जाता है उसके अंदर, और जो हार्वेस्टिंग यानी फसलों की जो कटाई की जाती है बहुत तेजी से कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड दे वर रिवार्डेड विद हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट. So in the Palampur, the yield of wheat grown from traditional varieties was 1300 kg. It means a traditional seed produces 1300 kg, okay, per hectare, whereas HYV seeds produces 3200 kg per hectare, okay, as compared to traditional seeds. HYV seeds can produce 3200 kg per hectare grains, okay, and there was a large increase in the production of wheat. इसका मतलब जो प्रोडक्शन जो था वीट का बहुत ज़्यादा बढ़ा. फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस, है ना. इट मीन्स इतना होगा तो क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस होगा, ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस, ठीक है ना. और सरप्लस को क्या करेंगे, सेल इन द मार्केट. प्रॉफिट इंक्रीज, ठीक है ना. प्रॉफिट क्या होगा उनका, बढ़ जाएगा, ठीक है ना. ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज विल द लैंड सस्टेन. नेक्स्ट फैक्टर इज विल द लैंड सस्टेन. वी विल कंटिन्यू इन दिस इन द नेक्स्ट पेज. सो विल नेक्स्ट टॉपिक इज विल लैंड सस्टेन, ठीक है ना. क्या लैंड सस्टेन रहेगी, ठीक है ना. तो what is land? Land is a natural resource, okay, you all know that land is a natural resource, okay, and because of this we have to use this in a careful manner, okay. We have to use land in a केयरफुल मैनर. जमीन एक नेचुरल रिसोर्स है, इस नेचुरल रिसोर्स को हमें बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, ओके. साइंटिफिक रिपोर्ट्स सेज दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड नेचुरल रिसोर्स बेस, ओके. साइंटिफिक रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट says that modern farming, okay, modern farming overused natural resources, okay. यानी जो नेचुरल रिसोर्स है उसको मॉडर्न फार्मिंग मेथड ने क्या कर दिया है, ओवर यूज कर लिया, ठीक है. इन मेनी एरियाज green revolution is associated with loss of fertility. In many areas soil loses its fertility, यानी कई एरिया में तो ऐसा हुआ है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, फर्टिलिटी वो कम हो गई है, ठीक है. एंड दिस इज बिकॉज यूज ऑफ chemical fertilizer. It is because of the use of chemical fertilizers, ठीक है ना. अब सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी कमज़ोर हो गई, ख़त्म हो गई, लूज कर ली. क्यों कर ली, क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है, ओके. एंड वी ओवर यूज ग्राउंड वाटर, ओके. इट मीन्स continuous use of groundwater,
water, okay, lead to depletion of water table, okay, or underground depletion of underground water लेवल, ओके। यानी अगर हम कंटिन्यूस यूज करेंगे, इफ वी कंटिन्यू यूज ग्राउंड वाटर, इट लीड टू द डिप्लीशन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है ना। अंडरग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एज वी नो दैट दिस वाटर लेवल बिल्ड इन over years, it builds over years, okay। It means once destroyed, it is difficult, it is very difficult, once destroyed it is very difficult to restore them, एक बार अगर ये ख़त्म हो जाता है तो रिस्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट to ensure future development of agriculture। अगर हमें इन्वायरमेंट को ध्यान रखना है, यानी हमें अपने इन्वायरमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा। किस लिए ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर का, ठीक है ना। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द आवर इन्वायरमेंट so that we can ensure future development of agriculture, okay। So next point is, how is land distributed between the farmers of Palampur, okay। So not all the people engage in the agriculture because they don't have a sufficient land for cultivation, okay। It means not all peoples of Palampur village engaged in farming, यानी गांव के जो सभी लोग हैं ना, सब लोग फार्मिंग में नहीं लगे हुए हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं लगे, बिकॉज okay, so in Palampur 1/3 of the 450 families, okay, they are landless। 1/3 of the 450 families they are landless, यानी उनके पास कोई जमीन नहीं है, okay। And most of them are Dalits, they don't have any land। Landless means don't have any land, ठीक है, उनके पास कोई जमीन नहीं है। remaining families who own land, it means remaining families have land, remaining जो बच गए हैं, remaining families have lands, have their own land। जो रिमेनिंग फैमिली है उनकी अपनी खुद की ज़मीन है। इट मीन्स 240 फैमिलीज कल्टिवेट
स्मॉल एरिया, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। 240 फैमिलीज है जो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड जो वो कल्टीवेट करती है। और ये स्मॉल जो प्लॉट है ये कितना है, इट्स ओनली 2 हेक्टेयर्स, इट्स ओनली 2 हेक्टेयर्स इन साइज। ओके, so cultivation of such plots doesn't bring adequate income to farmers family. Okay, it means they don't have sufficient income, don't have sufficient income, ठीक है ना। तो सफिशिएंट इनकम इनको नहीं हो रही है, ठीक है। 2 हेक्टेयर की ज़मीन पे ज़्यादा खेती नहीं कर पाते, और जो भी होती है उससे उनको इनकम ज़्यादा नहीं होती है। ओके ना। सो you can see that large number of small plots scattered around the village in the okay so plots in the like this is the Palampur village plot. Small plots are there like this or like this. Okay, and some have very small plots, this types. Okay, some have big plots, some have medium plots. Okay, and some have 2 hectares like plot like this one, these types of plots. Okay, so these is the distribution of cultivated land. What is this? Distribution of cultivated land, cultivated लैंड। ये क्या चीज़ हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसका, कल्टिवेटेड लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 4. ओके, not next point. So this one is the distribution of cultivated land. Okay, so these are cultivated by the small farmers. It means these are cultivated by small farmers. Okay, small farmers इस पे क्या कर रहे हैं, खेती करेंगे, ठीक है ना। इट मीन्स कल्टीवेशन लिख लेता हूँ ताकि आप लोग बाद में ये ना कहो कि हमें समझ में नहीं आया। कल्टीवेशन, ठीक है। कल्टीवेशन के लिए क्या कर रहे हैं, स्मॉल फार्मर इस पे खेती करेंगे, ठीक है। एंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। इट मीन्स हाफ ऑफ द विलेज is covered by large plots, ठीक है ना। यानी जो कल्टीवेटेड जो एरिया बचा है उसमें लार्ज प्लॉट्स है, कितना, गांव का आधा हिस्सा जो किसमें लार्ज प्लॉट है, और ये आधे हिस्से में कितना था, 60 फैमिलीज आती है, ठीक है ना। It means 60 families are medium and large farmers. यानी जो 60 फैमिलीज जो मीडियम फैमिलीज है और लार्ज फार्मर्स उसमें रहते हैं, ठीक है। मीडियम फैमिलीज हैं और लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है ना। Who have more than 2 hectares land, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा क्या है, जमीन है। ओके, सो few families are there. Okay, few farmers are there. Few farmers have more than 2 hectares land, that is 10 hectares और more। यानी कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं
जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़्यादा ज़मीन है, 2 हेक्टेयर ज़्यादा ज़मीन यानी कितनी, 10 हेक्टेयर की ज़मीन उनके पास है। ठीक है, मूविंग टू अवर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, who will provide labor, who will provide the labor. Okay, after land, labor is the next necessary factor of production. Okay, so labor is necessary factor of production. लेबर क्या है, नेक्स्ट जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है। फार्मिंग रिक्वायर्ड ग्रेट लेबर। ओके, फार्मिंग रिक्वायर्ड ग्रेट हार्ड वर्क, फार्मिंग requires hard work, lots of hard work. Okay, not hard work, lots of hard work. Okay, so small farmers with their families, along with their families, cultivate their own field. So small farmers along with their families, along with their family member, okay, along their family members, they family members cultivate their own field. ओके, इन जो स्मॉल फार्मर्स हैं, साथ जिसमें फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, ये अपनी क्या कर लेंगे, अपनी फील्ड को कल्टीवेट खुद ही कर लेते हैं। ठीक है ना, इट मीन्स दे मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर एट देयर ओन, अपनी जो ज़रूरत है वो खुद ही ये क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना, isn't it, understand that ना? So medium and large farmers, medium and large farmers, ठीक है ना, medium and large farmers they hire farm laborer to work on their fields. It means medium and large farmer required more laborers because they have large areas, large plots for cultivation, so they require more labor. So that's why they hire farm laborers to work on their field. Okay, work on their field, यानी अपने फील्ड पे, अपने खेत में काम करने के लिए मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं उनको क्या चाहिए, फार्म लेबर चाहिए, काम करने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूरों को वो क्या करते हैं, मजदूरी पे अपने यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है ना, अब फार्म लेबर जो होंगे, इट मीन्स फार्म लेबर्स दे केम इधर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज, या तो वो लैंडलेस फैमिलीज होंगे, इट मीन्स दे बिलोंग टू लैंडलेस फैमिलीज, और families cultivating small plots of land, families that cultivating small plots of land। ठीक है, यानी फार्म लेबर कौन होंगे, या तो लैंडलेस फैमिली से होंगे, या वो फैमिलीज के मेंबर्स होंगे जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे काम कर रहे हैं, यानी अपना काम तो करने के बाद उनके पास जो काम समय बच रहा है उस समय को वो क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव राइट्स ऑन दैट क्रॉप्स। ओके, दे डोंट हैव द राइट्स ओवर क्रॉप्स। ओके, क्योंकि वो मजदूरी कर रहे हैं तो उनको क्या है,
कोई क्रॉप्स के ऊपर उनका कोई भी राइट नहीं होता है. ओके, इंस्टेड ऑफ दिस दे आर पेड वेजेस. ओके, दे आर paid, they are means farm laborers, they are paid wages. Okay, या तो पैसे मिलता है. ओके, wages can be in cash or in kind. Kind means crops. या तो उनको क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, या क्या करेंगे, उनको कुछ फसल का कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा. ओके, एंड समटाइम्स दे ऑल्सो गेट मील्स, है ना, कभी कभी खाना भी उनको दिया जाता है. ओके, एंड वेजेस आर डिफरेंट इन wages are different in different regions. तो वेजेस जो है वो डिफरेंट होंगे डिफरेंट रीजन्स में. अलग अलग एरिया के वेजेस कैसे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. ठीक है, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग एंड कॉमन थिंग. ओके, सो there is also a wide variation duration of employment. Farm laborer might be employed on a daily basis. It means farm labor can work on daily basis. It means they called daily basis for the work. यानी डेली बुलाया जा सकता है काम करने के लिए, on the daily basis. Okay, like they called for harvesting. Okay, or they can be called for a whole year, can be work for whole year also. या तो उनको सीजन के अकॉर्डिंग बुला लेंगे, जब फसल काटने की सीजन तो बुला लेंगे, फसल बोने की सीजन तो बुला लेंगे, और नहीं तो उनको कैसे बुलाते हैं, उनको जो उनकी पूरे साल उनको रख लिया जाता है, वैसे भी उनसे काम करवाया जा सकता है. ठीक है ना. सो नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. So these are the important questions for you. Complete these questions, write down these questions in a proper manner in your notebook in a clear handwriting. Okay, and send your homework to my personal numbers. Okay, and if you have any query, we will send you the PDF file of these notes after you submit your notebook. Okay, you can use this PDF file, notes, and make your own notes also. Okay, thank you very much.